concerted mechanism, which proceed through a concerted mechanism, Concerted mechanism means no intermediate is formed. In these reactions, we cannot find any intermediate. No intermediate is formed. And one more important thing is these reactions can take place either in presence of light, that's H nu, or under thermal conditions, that is heat. So there are two things that control these reactions. One is photochemical condition and the other is thermal condition. These reactions can take place either under thermal conditions or under photochemical conditions. Now let us understand by taking an example. Let us take an example. So I have this type of example. This is an example. So basically this is an example of diel-delta reaction. So over here I have a diene and I have this type of species. These react together under thermal or photochemical conditions H nu or del. So what happens over here? The reaction proceeds through concerted mechanism. That's no intermediate will be formed. That means this bond will shift over here, and this bond will shift over here, and this bond will shift over here, resulting in the formation of six-membered cyclic transition state. So over here we can have six-membered cyclic transition state. This is the cyclic transition state that is formed over here, and it will result in the formation of product. That is, this type of product will be formed. So this is how pericyclic reaction takes place without any intermediate, under photochemical or under thermal conditions. So we do not require any reagent over here. You can see over here, we do not require for these reactions, no reagent is required. No reagent or catalyst is required. No reagent or catalyst is required. We do not require any reagent or catalyst for these reactions. So there are certain pointers which are important. That's its concerted mechanism. It takes place under thermal or photochemical conditions. We do not no intermediate is formed. So we do not require any reagent or catalyst for these reactions to take place. Let us take one more. So we'll take examples. First, we should know what are the types of these pericyclic reactions. So what types of pericyclic reactions? Types of pericyclic reactions we have to discuss in this unit. Types of pericyclic reactions. So what are the different types of pericyclic reactions that we have to discuss in this unit? They are electrocyclic reactions. We have electrocyclic reactions. And number second category is we have cycloaddition reactions. We have cycloaddition reactions. Number third category is we have sigmatropic rearrangements. Sigmatropic rearrangements. Sigmatropic rearrangements. And the fourth category is that we have ene reaction. Ene reaction. These are group transfer. Basically, these are group transfer reactions. Group transfer reactions. Group transfer reactions. So we have to deal with four types of reactions. That's electrocyclic reactions, cycloaddition reactions, sigmatropic reactions, and ene reaction. Now, if we come to the exam point of view, अगर हम exam point of view की बात करेंगे, that is CSIR net. और गेट की बात करेंगे CSIR नेट, और हम गेट की बात करेंगे, और हम सेट की बात करेंगे, सेट एग्जाम्स. तो इन एग्जाम्स में यू विल गेट 12 to 16 marks from these pericyclic reactions. एक क्वेश्चन आपको, one question will be asked from this sigmatropic rearrangement, one question from cycloaddition reactions, one question from group transfer, and mostly there may be 2 mark question from electrocyclic reactions. इन सारी रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कंसेप्ट होना चाहिए FMO का, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच. ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का जो कंसेप्ट है दैट बिकम्स वेरी वेरी इजी. चलिए स्टार्ट करते हैं, FMO कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट FMO कंसेप्ट. तो FMO अप्रोच को डिस्कस करेंगे. F फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच को डिस्कस करेंगे. फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच को डिस्कस करेंगे. बहुत ही इजी है, बस इसको अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा ध्यान रखना है. इट्स वेरी वेरी इजी. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे हमें डिस्कस करना है
पहली बात जो हमें फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आनी चाहिए, दैट इज हमें आना चाहिए हाउ टू चेक होमो और लोमो, हाउ टू चेक होमो और लोमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोमो। सेकंड चीज जो हमें यहाँ पे आना चाहिए, नंबर ऑफ नोड्स। थर्ड चीज जो यहाँ पे आना चाहिए, ये सब इंटर रिलेटेड है, दीज आर वेरी इजी। थर्ड चीज जो आना चाहिए दैट्स नंबर ऑफ साइज, नंबर ऑफ साइज। ये तीन चीजें अगर हमको आई तो बेसिकली अप्रोच जो हमारा होगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस या पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, वो बहुत ही इजी बन जाएगा। सो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, आई विल टेक एन एग्जांपल। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। सो दिस इज इथेन मॉलिक्यूल। सो दिस इज बेसिकली इथेन मॉलिक्यूल। जितने भी किसी मॉलिक्यूल में आपके पास कार्बन एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ साइज होंगे। तो पहला पॉइंट में यहाँ पे लिखूंगा, number of carbon atoms, number of carbon atoms is equal to number of size, isn't it? तो यहाँ पे हमारे पास दो साई होंगे, एक हमारा साई 1 होगा और एक हमारा साई 2 होगा। वी विल हैव टू साइज। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस कंपाउंड को ले लूंगा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन को लूंगा। यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स है, वी कैन हैव 4 साइज, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। ये बेसिक बात है जो हमें आनी चाहिए। तो पहली बात हमने देखा कि नंबर ऑफ साइज किसके बराबर होंगे, ये पहली बात है कि नंबर ऑफ साइज किसके बराबर होंगे। सेकंड जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट, दैट इज कि नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है। तो किसी भी साई में अगर नंबर ऑफ नोड्स निकालना है तो साई n इज इक्वल टू n-1, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स। अब ये क्या बात है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास साई 1 है, साई 1 मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, मतलब 1-1, यहाँ पे हमारा 0 नोड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास साई 2 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, तो वी विल हैव 2-1, दैट्स 1 नोड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास साई 4 है, तो यहाँ पे कितने नोड्स होंगे, 3-1, दैट इज 2 नोड्स। सो दिस इज हाउ आई डिटरमाइन नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स पता चल गया, साइज पता चल गई, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाउ टू अप्रोच वेदर देयर इज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, इजंट इट। इससे पहले कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से पहले एक और बात करेंगे, दैट्स पॉइंट नंबर 3। ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दिस वाज पॉइंट नंबर 1 and this was point number 3 2 and this is point number 3। point number 3 हमारे पास क्या है, that is symmetry rule। symmetry rule, अब ये symmetry rule क्या कहता है, symmetry rule हमें क्या बताता है कि वेदर जो हमारा साई है, वेदर जो हमारा ओवरलैप होता है, वेदर दैट इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, वेदर दैट इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि अगर ऑड नंबर ऑफ साइज होंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ साइज होंगे, ऑड साइज, ऑड साइज मतलब साई 1 होगा, साई 3 होगा, साई 5 होगा, लाइक दैट साई 7 होगा, तब हमारे पास जो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल्स होंगे दे आर सिमेट्रिक, जो ओवरलैप होगा दैट इज सिमेट्रिक। ऑड साइज आर सिमेट्रिक एंड अगर इवन साइज होंगे, इवन साइज होंगे, दैट इज साई 2 होगा, साई 4 होगा, that is size 6 होगा, etc. These are asymmetric. This is a symmetric rule. This is symmetry rule. तो आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। अब इन सारे रूल्स को मैं इस पे अप्लाई करूंगा और एंड वी विल डिटरमाइन होमो एंड लोमो, isn't it? तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई होगी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो हमने एक एग्जांपल ली थी, वी हैव टेकन एन एग्जांपल, दैट इज दिस एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कितने साइज होंगे, दो साइज होंगे, एक हमारा साई 1 होगा और एक हमारा साई 2 होगा, isn't it? तो साई 1 को बेसिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। बताओ साई 1 में कितने नोड्स है, यहाँ पे नोड्स इज इक्वल टू 0, और साई 2 में कितने नोड्स है, यहाँ पे नोड्स इज इक्वल टू 1, बिकॉज नोड्स किसके बराबर है, ये जो n का वैल्यू है n-1, दैट्स 2-1, नोड्स इज इक्वल टू 1। अब मैं इन ऑर्बिटल्स को यहाँ पे बनाऊंगा, दो कार्बन एटम्स है मतलब दो ऑर्बिटल्स है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक और ऑर्बिटल है। अब देखो इनके केस में हमारे पास कोई नोड नहीं है, देयर इज नो नोड,
नो नोड का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा प्लस आएगा, यहाँ पे हमारा प्लस आएगा, बिकॉज देयर इज नो नोड, मतलब प्लस प्लस इंट्रैक्शन, माइनस माइनस इंट्रैक्शन, ये जो ऑर्बिटल्स है ये इंट्रैक्ट करेंगे, इजंट इट? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, मेरे पास अगेन दो ऑर्बिटल्स है, दिस इज वन ऑर्बिटल एंड दिस इज अदर ऑर्बिटल, बट बेसिकली यहाँ पे एक नोड है, मतलब इनके बीच में यहाँ पे एक नोड है, तो यहाँ से एक नोड है तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप मतलब अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा, अगर यहाँ पे हमारा माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। क्लियर? तो इस चीज को मैं कहूंगा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। तो ये दो बातें हैं जो हमने यहाँ तक सीखी, ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है और ये क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। इसको मैं कहूंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनेगा दिस विल बी नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगी उसकी वजह से क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे हमारा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ईबीएमओ। यहाँ तक आई होप कि सबको बातें समझ में आई होंगी। अब इजी है, कोई भी मॉलिक्यूल देगा आपको तो किसी भी मॉलिक्यूल में आप कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूंगा ये क्या है, दिस इज सिमेट्रिक, बिकॉज ओड है साई का वैल्यू। अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज दिस, दिस इज एसिमेट्रिक, वाई? बिकॉज साई का वैल्यू जो है दैट इज इवन। ये एसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक आगे आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, नंबर ऑफ नोड्स, मतलब ये जो एफएमओ अप्रोच है सारी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की बेस है। अब हम चेक करेंगे होमो एंड लूमो। हाउ टू चेक होमो एंड लूमो? हाउ टू चेक होमो एंड लूमो? तो होमो और लूमो को डिफरेंट कंडीशंस में हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस लूंगा, तो यहाँ पे मैं लूंगा अंडर थर्मल कंडीशंस, अंडर थर्मल कंडीशंस, अंडर थर्मल कंडीशंस, दिस इज द सिंबल फॉर थर्मल कंडीशंस। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा अंडर फोटोलिटिक कंडीशंस, अंडर एच न्यू कंडीशंस। तो देखो बेसिकली हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर यहाँ पे देखो आप कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो ऑर्बिटल्स भी हैं। देखो ये एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, इजंट इट? ये एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल, ये हमारा साई वन है और ये हमारा साई टू है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंडर थर्मल कंडीशंस। ये सब किसकी बात हो रही है, थर्मल कंडीशन की बात हो रही है, थर्मल कंडीशन की बात। देखो इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिटल, इसलिए इसको होमो कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस नोन एज? इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसको कहते हैं हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड या लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, isn't it? इसको लूमो कहते हैं, दिस विल बी नोन एज लूमो। तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज लूमो। ये दो हमारे पास ऑर्बिटल्स बन गए। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा इन केस ऑफ इथीन मॉलिक्यूल which orbital, which is the homo and which is the LUMO, so this is the homo and this is the LUMO, isn't it? तो क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे एच न्यू के कंडीशन में क्या होगा, एच न्यू के कंडीशन में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हमारा एच न्यू जब भी हम देते हैं तो रेडिकल्स बनते हैं, मतलब एक्साइटेशन हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन हमारा साई वन में रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके साई टू में जाएगा। अगर यहाँ पे बोलेंगे विच इज होमो, होमो इज दिस, ये होमो है बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, सो ये हमारा होमो बन गया। सिंस यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें है इसलिए कभी कभी इसको हम सुमो भी बोलते हैं, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। क्लियर? तो ये बात यहाँ तक क्लियर होती है कि होमो कैसे निकालते हैं और लूमो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रिक भी दे दूंगा, इस होमो और लूमो को हम कैसे निकालते हैं, इसकी एक ट्रिक भी आएगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइन, लेट मी टेक 1,3-ब्यूटाडाइन, यही वाली एग्जाम्पल है। ये हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन है, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन। बताइए इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, देयर आर 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, दिस इज 4 कार्बन एटम। अगर 4 कार्बन एटम है तो कितने
साइज होंगे, वी विल हैव 4 साइज। तो ये हमारे पास साई 1 है, इजंट इट? ये हमारे पास साई 2 होगा, और ये हमारे पास साई 3 होगा, लेट अस से, और ये हमारे पास साई 4, इजंट इट? तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आता है, द होमो ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन इज, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द LUMO ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन अंडर थर्मल कंडीशंस, और व्हाट इज द HOMO ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन अंडर photochemical conditions, under photolytic conditions? Basically a question has been asked in I think 2016 or 2017 में 136 हेक्साट्राइन का आया था। तो देखो कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स है। तो पहले यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये हमारा पहला ऑर्बिटल बन गया, ये सेकंड ऑर्बिटल बन गया, ये थर्ड ऑर्बिटल बन गया, एंड दिस इज द फोर्थ ऑर्बिटल। अब देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये साई 1 है, मतलब पहला ऑर्बिटल। साई 1 है तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, नोड्स इसमें होंगे 1 - 1, दैट इज 0, 0 नोड्स हैं। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप मतलब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस 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 माइनस, मतलब इनके बीच में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, इजंट इट? यहाँ पे कोई नोड प्रेजेंट नहीं है। साई 1 है तो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। दीज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दिस केस, मतलब ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें प्रेजेंट है, दैट इज साई 1, ये हमारा साई 1 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। साई 2 की बात होगी, ये हमारा साई 2 है, इसमें अगर नोड्स निकालेंगे, नोड्स विल बी इक्वल 2 - 1, दैट इज 1। नोड्स की बात होगी, नोड्स विल बी इक्वल टू 1, 1 नोड प्रेजेंट है, तो मैं ऑर्बिटल्स को ऐसे बनाऊंगा। बहुत ही इजी है, एग्जाम में बहुत ही इजी है इसको निकालना, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंड करना है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो देखो एक नोड प्रेजेंट है, लेट अस सपोज कि नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे नोड प्रेजेंट है तो इनका जो ओवरलैप होगा दैट शुड बी अपोजिट, मतलब अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई नोड नहीं है, मतलब ये भी प्लस होगा। इन दोनों के बीच में कोई नोड नहीं है, मतलब ये हमारा माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। क्लियर? तो ये हमारा साई 2 है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, साई 2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस इज अंडर थर्मल कंडीशंस। अगर फोटोकेमिकल कंडीशन होगी तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा ऊपर वाले ऑर्बिटल में। ये हमारा साई 3 है। साई 3 के केस में हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट, देयर आर 2 नोड्स प्रेजेंट। तो साई 3 में हमारे पास 2 नोड्स हैं, बेसिकली 4 ऑर्बिटल्स है, तो पहले 4 ऑर्बिटल्स को ड्रा करेंगे। यहां से हम पहले 4 ऑर्बिटल्स को ड्रा करेंगे। अब कितने नोड्स हैं, 2 नोड्स हैं। लेट अस सपोज कि पहला नोड जो है दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर। पॉसिबिलिटी ये है कि एक नोड यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। अब बस अगर यहाँ पे नोड है तो ये प्लस ये माइनस होगा, ये माइनस ये प्लस होगा। यहाँ पे नोड नहीं है, अगर ये माइनस है दिस शुड आल्सो बी माइनस। तो यहाँ पे प्लस है, दिस शुड बी प्लस। यहाँ पे नोड है, अगर ये माइनस है ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। तो देखो दिस इज हमारा साई 3 अंडर थर्मल कंडीशंस, दिस इज साई 3। तो साई 3 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लास्ट वाला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो साई 2 है। सो दिस इज होमो, दिस इज होमो। और ये जो हमारे पास है दिस इज ल्यूमो। अगर मैं साई 4 को बनाऊंगा, साई 4 के केस में मेरे पास नोड्स कितने हैं, नोड्स निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है नोड्स इज इक्वल टू 3, तो 3 नोड्स है, बना 4 ऑर्बिटल्स, बहुत ही इजी होगा। 4 ऑर्बिटल्स बना। ग्रुप थ्योरी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा वायर इट हैज अ रोल। तो 4 नोड्स हैं, लेट अस से ये हमारे पास एक नोड है, 3 नोड्स हैं, ये हमारे पास सेकंड नोड है, एंड दिस इज थर्ड नोड। नोड है तो ये प्लस है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, नीचे माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये हमारा साई 4 होगा, दिस इज साई 4। दिस इज द केस ऑफ थर्मल कंडीशन। अगर फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, isn't it? This is the case of photochemical condition। ये साई 1 है, ये साई 2 है, ये साई 3 है, ये साई 4 है, एंड दिस बिकम्स होमो, और इसी को आप सुमो कहते हैं। क्लियर हो, क्लियर बात हुई? आई होप कि ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने आपको सिमेट्री रूल बताया था, सिमेट्री रूल क्या क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ साइज होते हैं, दिस इज एन ऑड नंबर ऑफ साइज,
अगर आप यहाँ पे देखोगे psi 1 के केस में यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट होगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई होप कि ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो पेरिसाइकिल के बाद मैं ग्रुप थ्योरी डिस्कस करूंगा। तो जो भी ऑड वैल्यूज ऑफ साई होंगे यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज C2 एक्सिस प्रेजेंट, मतलब जो भी हमारे ऑड वैल्यूज ऑफ साइज है जो सिमेट्रिक है, यहाँ पे हमने देखा था विच आर सिमेट्रिक वन, जो भी सिमेट्रिक होते हैं उनके पास C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने पहला लेक्चर इसका डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक्स, हाउ टू डिटरमाइन होमो एंड लोमो यूजिंग ट्रिक्स। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।